student, I am Nidhi Srivastav, Assistant Professor in NIT Pharmacy Institute, Greater Noida. So, today I will deliver the lecture on basic principle, methods and application of diazotization titration. Firstly, I will discuss about the what is diazotization titration. The diazotization titration is nothing but the conversion of the primary aromatic amine to a diazonium compound. Diazotization is related to the formation of the diazonium salt, okay, and reaction between the primary aromatic amine with the sodium nitrate and the nitric acid. In this method, the primary aromatic amine is reacted with the sodium nitrite in acidic medium to form a diazonium salt. It is diazotization is related to the diazotization reaction, which is related to the formation of the diazonium salt and the reaction of primary aromatic amine. The method is first used in the determination of dyes. In the titration method, it is used for the determination of the dyes. तो डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन आपने डायजोनियम रिएक्शन पढ़ी होगी, जिसमें डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू होता है, बाय द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, और उसकी रिएक्शन होती है सोडियम नाइट्राइट के साथ विद द एसिडिक मीडियम, जहां HNO3 यूज़ करते हैं इन एसिडिक मीडियम, नाइट्रिक एसिड और HCl बोथ. This is the apparatus which is used in the diazotization titration: magnetic stirrer, beaker, these are the electrodes, and this is burette, and this is indicator electrode, and this is the reference electrode. So, two types of electrode are used in there, and the beaker, magnetic stirrer and burette. So, this is the apparatus which is used in the diazotization titration reaction. Principle of diazotization titration: diazotization titration, the process of conversion of primary aromatic amine into its diazonium salt is called diazotization. तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, डायजोनियम का फॉर्मेशन होता है, डायजोनियम सॉल्ट का, किसके थ्रू, बाय द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन. प्राइमरी एरोमेटिक अमीन means aromatic compound is in benzene ring, an amine in first position, and diazonium salt are important synthetic intermediate that can undergo coupling reactions to form azodize and electrophilic substitution reaction to introduce functional group. डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं, क्यों उनको बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होते हैं सिंथेटिकली एंड इंटरमीडिएट होते हैं कि तरह वर्क करते हैं और फॉर्म करते हैं एजोडाइज का, फॉर्मेशन ऑफ द एजोडाइज एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं टू द इंट्रोड्यूस फंक्शनल ग्रुप्स. The principle involved in the method is that the primary aromatic amine present in the sample reacts with the sodium nitrite in the presence of acids such as hydrochloric acid to obtain a diazonium salt. तो इस तरह से रिएक्शन होती है RNH2, this is the primary aromatic amine, this is aryl group, NO2 sodium nitrate and HCl, it forms the diazonium salt, NaCl and water. Sodium nitrite is added to the solution of amine in the presence of at 0 to 5 degree Celsius. जो भी रिएक्शन होती है उसमें टेम्परेचर हमें 5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना होता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से अबव अगर टेम्परेचर है तो फॉर्म नहीं होता है, और नाइट्रोजन जो होती है वो बाहर निकल जाती है. तो इसलिए हमें 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करना होता है, या उससे कम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. द अमीन रिएक्ट्स विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म नाइट्रोसामीन. जो अमीन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, और नाइट्रोसामीन का फॉर्मेशन करते हैं.
which is followed by the tautomerization and the water molecule is lost to the form a diazonium ion. This diazonium ion is stabilized by the displacement of the positive charge at the ortho and the para position of the ring. जो ये डायजोनियम आयन फॉर्म होते हैं ये डिस्प्लेसमेंट के थ्रू पॉजिटिव चार्ज में, मतलब जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिंग पे होते हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट मेथड शो करते हैं. इस तरह से प्रिंसिपल है. द फर्स्ट इन्वॉल्व इज एडिशन of the sodium nitride to hydrochloric acid and cause formation of nitrous acid. तो सबसे पहले हम देखेंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइड HCl से रिएक्ट करके HNO2 फॉर्म कर रहा है एंड NaCl. अब दिस नाइट्रस एसिड डायजोटाइजेस द एरोमेटिक अमीनो ग्रुप. अब जो ये नाइट्रस एसिड है ये बेसिकली यूज़ होगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ और एरोमेटिक अमीन ग्रुप को जो है अमीनो ग्रुप को डायजोटाइज कर देगा और डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा. तो वैसे तो हम देख रहे हैं कि सोडियम नाइट्रेट यूज़ हो रहा है, लेकिन वो HCl के साथ पहले HNO2 फॉर्म कर रहा है नाइट्रस एसिड. देन नाइट्रस एसिड जो है वो डायजोटाइज कर रहा है एरोमेटिक अमीन ग्रुप को. तो इस तरह से ये जो पूरी रिएक्शन है ये है RNH2 मतलब एराइल अमीन और NaNO2 HCl, इट फॉर्म्स द डायजोनियम सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड और वाटर भी साथ में निकलेगा. आफ्टर द एंड पॉइंट द एक्सेस नाइट्रस एसिड फॉर्म्ड is shown by instant formation of blue color with starch iodide paper. तो अगर हम टाइट्रेशन की बात करते हैं तो टाइट्रेशन में जब एंड पॉइंट क्रिएट होता है तो जो एक्सेस नाइट्रस एसिड हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय द इंस्टेंट फॉर्मेशन ऑफ द ब्लू कलर, जो किसकी वजह से आता है स्टार्च आयोडाइड पेपर की वजह से. स्टार्च आयोडाइड पेपर एज अ इंडिकेटर यूज़ होता है इन द डायजोटाइजेशन प्रोसेस. इस तरह से फॉर्म होता है. पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है HCl के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड पोटेशियम साथ में पोटेशियम क्लोराइड आता है. अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है जब HNO2 फॉर्म हो जाता है बाय द NaNO2 और HCl के साथ, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है HNO2 से रिएक्ट करके आयोडीन के फॉर्म में आ जाता है. ये आयोडाइड के फॉर्म में आता है आयोडीन के फॉर्म में, और ये आयोडीन जो है स्टार्च से रिएक्ट करके स्टार्च आयोडाइड और एक पेपर के फॉर्म में होता है और इसको हम टच करा के ऐसे इंडिकेटर की तरह वर्क कराते हैं. नाइट्रस ऑक्साइड और ये H2O साथ में निकलते हैं. स्टार्च आयोडाइड पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय इमर्सिंग अ फिल्टर पेपर इन स्टार्च म्यूसिलेज एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. तो जो स्टार्च आयोडाइड पेपर है जो एज अ इंडिकेटर की तरह वर्क कर रहा है डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन में, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है इमर्स करके फिल्टर पेपर में स्टार्च म्यूसिलेज को और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को. क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से हमें आयोडाइड मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा. हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा वो HNO2 से रिएक्ट करके आयोडीन के फॉर्म में निकलेगा. अब ये आयोडीन जो होगा वो स्टार्च म्यूसिलेज के साथ रिएक्ट करेगा और स्टार्च आयोडाइड पेपर फॉर्म होगा. द आयोडीन फॉर्म reacts with starch mucilage to give the blue color. तो इस तरह से आयोडीन और स्टार्च प्रोड्यूस करेंगे ब्लू कलर एट द एंड पॉइंट. द एंड पॉइंट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन द डेड स्टॉप एट द एंड पॉइंट एंड द पोटेंशियोमेट्री टेक्निक बाय द. तो जो एंड पॉइंट है वो डिटरमाइन होगा. डेड स्टॉप मतलब कार्ल फिशर टाइट्रेशन के थ्रू भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं और पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक के थ्रू भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं एंड पॉइंट को. तो दिस इज द सैम्पल सॉल्यूशन. दिस इज बीकर एंड बीकर में सैम्पल सॉल्यूशन है. ये ब्यूरेट लगा हुआ है जिसमें टाइट्रेंट है और मैग्नेटिक स्टेयर है जिससे कि सॉल्यूशन जो है वो कंटिन्यू मूव करेगा. और उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है. दिस इज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. अब यहाँ से ब्यूरेट से आपका जो सैंपल है टाइट्रेंट है वो इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर उसके बाद स्टार्च आयोडाइड पेपर को इसमें टच कराएंगे. जैसे ही ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है इट मीन्स एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा. तो दो तरह से टेक्निक होती है क्योंकि इलेक्ट्रोड्स यूज़ हो रहे हैं, तो या तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं या फिर
पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक के थ्रू फॉलो करते हैं डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन. Now the types of the diazotization titration, there are mainly 3 types of method based on the titration procedure. They are as follows. First is the direct method. The main principle involved in this method is to treat amino group containing drug with the acid solution. जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड एक तरह से सिंपल आपका टाइट्रेशन मेथड होता है जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, जिसमें हमें एक्सेस में कोई अमाउंट नहीं चाहिए होता है. तो ये मेथड इन्वॉल्व है अमीनो ग्रुप जो होगा ट्रीट होगा बाय द किसी विद द एसिड सोल्यूशन के साथ. हमने यहाँ HCl लिया है और द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ इमर्स्ड इन द कोल्ड वाटर. और जो सॉल्यूशन है वो हमें कोल्ड वाटर में ही, कोल्ड वाटर बाथ में ही या फिर आइस में रखना होगा द सॉल्यूशन. एंड और उसको कि हमें जो टेम्परेचर सेट करना है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही रखना है. तो हमें ध्यान में रखना होगा टेम्परेचर को. द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज इमर्स इन द कोल्ड वाटर बाथ और आइस वाटर बाथ बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. देन दिस solution is titrated with the sodium nitrite solution. इसके बाद जो ये solution आपका प्रिपेयर हो गया है अमीनो ग्रुप का, मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का, देन इसको फिर हमें टाइट्रेट कराना होगा बाय द नाइट्राइट सॉल्यूशन के थ्रू. द एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द अबव मेंशन मेथड. जो भी मेंशन ऊपर मेथड दिया गया है उसके थ्रू एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा. अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर ही हमें सेट करना है. अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. Second है indirect method. The principle involved in this method is that the excess nitrous acid, this is the back titration. Excess nitrous acid is added to the titration sample solution and it is back titrated with the other appropriate titrant. This method is mainly used for the titration of insoluble diazonium salt. तो indirect method हम तब यूज़ करते हैं जब हमें insoluble diazonium salts का titration कराना होता है, क्योंकि इसमें हमें excess amount में nitrous acid यूज़ करना होगा, मतलब सोडियम नाइट्रेट यूज़ करना होगा और excess फिर उसका back titration करना होगा. तो back titration में हमें excess amount में titrant चाहिए होता है और then हम titration का process करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट other methods involve the replacement method and other techniques. The main principle involved in this method is the formation of the diazo oxide which is more stable than the diazo compound. इस मेथड में क्या है, अगर हम दूसरे मेथड्स यूज़ करते हैं तो डायज़ो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और डायज़ो ऑक्साइड जो है वो मोर स्टेबल है डायज़ो कंपाउंड से. फॉर एग्जांपल द अमीनो फिनॉल इज रेडली ऑक्सीडाइज्ड बाय द नाइट्रस एसिड एंड कन्वर्टेड टू द क्यूनोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स द डायज़ो ऑक्साइड कंपाउंड. तो अगर हम दूसरे मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ डायज़ो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. कैसे होगा, जो अमीनोफिनॉल है ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रस एसिड के साथ और कन्वर्टेड हो जाएगा क्यूनोन्स में और फॉर्म कर लेगा डायज़ो ऑक्साइड का कंपाउंड का, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है किससे, डायजोनियम सॉल्ट से. दिस रेडली अंडरगोज द कपलिंग रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड द कपलिंग रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड. तो ये एक तरह से कपलिंग रिएक्शन कराएगी जो कहलाएगी, जो होगी नाइट्रस एसिड के साथ. नाउ द थ्योरी ऑफ द डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन. When sodium nitrite is reacted with the hydrochloric acid, sodium chloride and nitrous acid are formed. ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि सोडियम नाइट्राइड जब रिएक्शन स्टार्ट होगी डायजोटाइजेशन की तो सबसे पहले सोडियम नाइट्राइड जो है वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ और नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होगा. जो नाइट्रस एसिड है वही प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को डायजोटाइज करेगा और डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा. तो सबसे पहले रिएक्शन होगी सोडियम नाइट्राइड के HCl के साथ और NaCl का फॉर्मेशन होगा. साथ में बेसिकली आपको चाहिए क्या, नाइट्रस एसिड, इसलिए NaNO2 और HCl की रिएक्शन फर्स्ट होके नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होगा. द ऑब्टेन नाइट्रस एसिड इज रिएक्टेड विद द
primary aromatic amine to form the diazonium salt. The excess of nitrous acid is removed by the addition of ammonium sulfamate solution. अब जो excess में nitrous acid रह जाता है रिएक्शन में, उसको रिमूव कर देंगे अमोनियम सल्फामेट सॉल्यूशंस के थ्रू. तो फिर बाद में जो HNO2 है, जो नाइट्रस एसिड है, वो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ मिलके डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, साथ में वाटर मतलब इवॉल्व होगा. द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लू कलर विद स्टैंडर्ड आयोडाइड पेपर, स्टार्च आयोडाइड पेपर. अब जब एंड पॉइंट की बात करेंगे तो एंड पॉइंट अब डिटेक्ट होगा जब हम स्टार्च आयोडाइड पेपर, जो हमने पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च म्यूसिलेज से मिलकर बनाया है, वो हम टच कराएंगे. जैसे ही उसमें पेपर टच होगा और वो ब्लू कलर, जैसे इंटेंस ब्लू कलर मिलेगा, इट मीन्स आपका एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा. दिस इज प्रिपेयर्ड बाय immersing the filter paper in the starch mucilage and the potassium iodide. Now the procedure, the general procedure is followed by weighing the sample and transferring it into the standard flask. सबसे पहले जो भी हम सैंपल ले रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, तो सबसे पहले उसको लेंगे, वेट आउट करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे स्टैंडर्ड फ्लास्क में. द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड आर एडेड एंड द रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज फिल्ड विद द डिस्टिल्ड वाटर. दिस रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नोन एज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन. तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. नाउ द अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज पिपेटेड आउट एंड द टेम्परेचर इज मेंटेन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. याद रखना है हमें, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फिर जो भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में प्रिपेयर किया है उसको पिपेट आउट कर लेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में. देन द सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद द सोडियम नाइट्रेट solution until the starch iodide paper turns into blues color. तो इसके बाद फिर हम टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे. स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो प्रिपेयर किया है, देन हम उसको टाइट्रेट करेंगे सोडियम नाइट्राइट के थ्रू, और स्टार्च आयोडाइड पेपर तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक स्टार्च आयोडाइड पेपर जो है वो ब्लू कलर में टर्न्स ना हो जाए. अनदर प्रोसीजर इज आफ्टर मेंटेनिंग द कॉनिकल फ्लास्क, द टेम्परेचर, द पेयर ऑफ द प्लेटिनम electrodes is immersed. Then the electrode are connected to the potentiometer and slowly titrated with sodium nitrate solution until a permanent डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व एट द एंड पॉइंट. अगर अनदर प्रोसीजर जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कॉनिकल फ्लास्क में एक तो टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, साथ ही साथ जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इमर्स कराएंगे, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड जो होगा वो कनेक्ट होगा पोटेंशियोमीटर से, स्लोली टाइट्रेटेड होगा, मतलब ब्यूरेट से जो सोडियम नाइट्रेट है उसको धीरे धीरे ऐड कराएंगे, स्लोली टाइट्रेटेड होगा, और तब तक जब तक कि एंड पॉइंट डिटेक्ट ना हो जाए. एंड पॉइंट डिटेक्शन, द एंड पॉइंट इज इन diazotization. Titration is detected by the following procedure. The excess of nitrous acid is determined by the addition of the starch iodide as an external indicator. अब हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि जो starch iodide पेपर यूज़ हुआ है वो एक्सटर्नल इंडिकेटर की तरह यूज़ है, क्योंकि हम उसको एक्सटर्नली इंड्यूस करा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली. अगर डायरेक्टली इंड्यूस कराते तो इंटरनल इंडिकेटर होता है, लेकिन हम यहाँ इसको एक्सटर्नली इंड्यूस करा रहे हैं, बाहर से हम पेपर को यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये एक्सटर्नल इंडिकेटर है. आफ्टर द डायजोटाइजेशन, 1 drop ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज प्लेस्ड ऑन द स्टार्च आयोडाइड पेपर विच चेंजेस इनटू डार्क कलर. जैसे ही डायजोटाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, हमें लगता है कि अब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो हम जो भी एक ड्रॉप लेके ग्लास रॉड से स्टार्च आयोडाइड पेपर में रखेंगे और उसको देखेंगे वो डार्क कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. अगर नहीं होता है तो फर्दर हम टाइट्रेशन को करते रहेंगे. अनदर मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एंड पॉइंट इज बाय इमर्सिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो डिटेक्टेड बाय द डेड स्टॉप एंड पॉइंट मेथड. और दूसरा मेथड ये है कि हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं, जिसमें हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ करके करेंगे, डिटेक्ट कर सकते हैं एंड पॉइंट को, और ये हम कर सकते हैं बाय द कार्ल फिशर टाइट्रेशन के थ्रू.
The next method for the detection of the endpoint in the diazotization titration is by adding the potassium iodide to the nitrous acid with excess acid which liberates the iodine. The liberated iodine is back titrated with the sodium thiosulfate using starch as the external indicator. The end point is detected by the appearance of blue color. तो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, तो उसमें डिटेक्शन अगर एंड पॉइंट का कराना है इन द डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, सो ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस में नाइट्रस एसिड के साथ जो कि आयोडीन के साथ लिबरेट होगा, और उसके बाद द लिबरेटेड आयोडीन इज बैक टाइट्रेटेड, मतलब एक्सेस में हमने लिया है क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट मेथड यूज हो रहा है बैक टाइट्रेशन, तो एक्सेस में हमने आयोडीन जो भी लिया है इज बैक टाइट्रेटेड विद द सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे. दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेडॉक्स टाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि आयोडीन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सोडियम थायोसल्फेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एक तरह से ये रेडॉक्स टाइट्रेशन भी हो सकता है. और स्टार्च जो हो रहा है यूज एज अ एक्सटर्नल इंडिकेटर और एंड पॉइंट में ब्लू कलर अपीयर होगा. प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन. अब कैसे कैसे हम सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, देन उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे. अप्रोप्रिएटली वेट सोडियम नाइट्राइट इज डिजॉल्व इन द वाटर एंड मेड अप टू द डिजायर्ड वॉल्यूम. नाउ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सोडियम नाइट्राइट is carried out by titrating the previously dried sulfanilamide dissolved in the water and hydrochloric solution which is cooled to 15 degrees Celsius with standard solution of the sodium nitrite. तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सोडियम जो हमने सल्फानिलामाइड यूज़ किया, सल्फानिलामाइड का हम एक तरह से एस्टिमेशन कर रहे हैं, क्योंकि डायजोटाइजेशन जो है वो सल्फानिलामाइड जो सल्फा ड्रग्स होती हैं उनके एस्टिमेशन के लिए यूज़ करा जाता है. तो स्टैंडर्डाइजेशन जो हो रहा है सोडियम नाइट्राइट का, वो टाइट्रेट होगा सल्फानिलामाइड के थ्रू, जो डिज़ोल्व होगा वाटर में, जो वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन होगा विच इज़ कूल्ड 15 डिग्री सेल्सियस विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम नाइट्राइट. Now the factor affecting the diazotization, फर्स्ट इज द एसिड कॉन्सेंट्रेशन. एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टेड करेगी डायजोटाइजेशन को. pH ऑफ द सोडियम नाइट्रेट. द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन शुड बी मेंटेन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. द डायजोनियम कंपाउंड्स आर डीकम्पोज्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर. अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो डायजोनियम कंपाउंड जो होंगे वो डीकम्पोज हो जाएंगे. रिएक्शन टाइम इट टेक्स 10 to 15 मिनट. जो भी रिएक्शन टाइम है वो 10 to 15 मिनट इन्वॉल्व होता है. द कंपाउंड्स रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड एट डिफरेंट रेट based on the nature of the compound. Slow diazotizable groups like sulfur groups, carboxylic group and nitrogen oxide group. Fast diazotizing group like analyte, toluidine and aminophenol. तो जो ग्रुप स्लोली डायजोटाइज होते हैं उसमें आते हैं आपके सल्फा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रुप. जो फास्टली डायजोटाइज होते हैं उसमें आते हैं एनालाइट, टोलिडीन एंड अमीनोफिनॉल. The rate of the titration, addition of the sodium nitrite to the sample solution take the time to react with the amino group represent in the sample solution, and then different amino compounds react with the nitrous acid and at the different rate. Based on this, the amino compounds are classified into two main groups. They are as follow. First is the slow diazotizable compound, जिसमें हमने देखा कि सल्फर ड्रग्स थे आपके और नाइट्रोजन कंपाउंड्स थे. एग्जाम्पल में आते हैं सल्फानिलिक एसिड एंड एंथ्रानिलिक एसिड. एंड फास्ट डायजोटाइजेबल ग्रुप में आपके टोलुडीन, अमीनोफिनॉल, एमाइड्स आते हैं. द रिएक्शन रेट इज इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ द पोटेशियम ब्रोमाइड सोल्यूशन. अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराना है तो पोटेशियम ब्रोमाइड सोल्यूशन को एक्सेस में ऐड करा सकते हैं. द टेम्परेचर इफेक्टेड द डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन. मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर इज द मेन condition for the diazotization titration. The diazonium salt formed are not stable at elevated temperature, so we can maintain the temperature 0 to 5 degree Celsius.
Advantages of the diazotization: selective for the all types of the सल्फोनामाइड, जितनी भी सल्फा ड्रग्स हैं, सल्फोनामाइड्स कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं उन सब के लिए ये यूज़ होता है, सेंसिटिव है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी रखता है। डिसएडवांटेज: एप्लीकेबल फॉर अ वेरी लेस वैरायटी ऑफ सैंपल, क्योंकि कुछ ही कैटेगरी की ड्रग को ही ये टाइट्रेट स्टैंडर्डाइज कर सकता है, टाइट्रेशन हो सकता है प्रोसेस का, तो इसलिए बहुत ही लेस वैरायटी के सैंपल्स को ही के लिए एप्लीकेबल है। रिलेटिवली स्लो व्हेन कंपेयर टू अदर मेथड, अगर हम दूसरे मेथड से कंपेयर करें तो ये उसके रिलेशन में कम स्लो मेथड होता है। टेम्परेचर कंडीशन टू बी प्रॉपरली मेंटेन थ्रू आउट द रिएक्शन, टेम्परेचर कंडीशन भी हमें देखनी है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रखना है। द एंड पॉइंट डिटेक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट, द कलर प्रोड्यूस इज नॉट स्टेबल एंड द लैक ऑफ द स्पेसिफिसिटी। एप्लीकेशन यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सल्फोनामाइड, अब एप्लीकेशन हम देखते हैं तो सल्फोनामाइड्स ड्रग के लिए ये यूज़ होता है, उसके एप्लीकेशन में यूज़ होता है, तो इसका मेथड हम देख लेते हैं। इसका मेथड हमने आगे भी डिटरमाइन किया है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि एक्यूरेटली वेट 1 mg सैंपल ऑफ सल्फोनामाइड एंड डिजॉल्व इट इन द 4 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड इन 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। तो पहले 1 mg सल्फोनामाइड लेंगे, उसको उसमें ऐड करेंगे 4 ml HCl, 10 ml डिस्टिल वाटर, देन द सॉल्यूशन इज कूल्ड टू 15 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद हमें टेम्परेचर फिर सेट करना पड़ेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस एंड द टाइप नॉट 15 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस and titrated with the 0.1 molar the sodium nitrate solution. The end point is determined by the streaking 1 drop of the titration solution on the starch iodide paper until the blue color is appear. The percentage of the amount of the sulfur drug is determined by the following equation. इस तरह से where V is the volume of the titrant consumed, M is the molarity, जिसमें हम एक फॉर्मूला रखेंगे एंड इक्विवेलेंट वेट के थ्रू डिटरमाइन करेंगे, W is the weight of the sample used in the determination of the chlorpheniramine। इसके बाद इसके और यूज़ देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द डोपामाइन, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोकेन, डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्फेटामिन, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोकेन एंड इफेड्रीन, डिटर्मिनेशन ऑफ द पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड विच इज़ लाइक अ विटामिन B4। अब एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय द सल्फानिलामाइड। इसका प्रोसीजर है, जो सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं सल्फानिलामाइड ड्रग के थ्रू, इसमें डिज़ोल्व करते हैं 0.3 ग्राम ऑफ सल्फानिलामाइड इन 50 ml ऑफ 2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, then add the 3 gram of potassium bromide, cool in ice and titrate with the sodium nitrate solution, determining the end point potentiometrically। तो एंड पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे पोटेंशियोमेट्रिकली मेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू। इंडिकेटर यूज्ड स्टार्च आयोडाइड पेपर, डिस्टिंक्ट ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड एट द एंड पॉइंट। 1 ml of 0.1 molar sodium nitrite is equivalent to the 0.01722 gram of sulfanilamide. So this is the example of the standardization of sodium nitrite solution by the sulfanilamide drug. So this is all about the diazotization titration reaction. Thank you.